کرتا رہا کہ یہ اپنی چنگاری جو ہے ان میں وہ زندہ رہے. اور صحبتیں میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میری صحبتوں نے سراج کو بگاڑ دیا، اس لیے کہ مزاحیہ شاعری کرتے کرتے سنجیدہ شعر کہنے لگے اور بڑے کامیاب شعر کہنے لگے. ایک میری نظر میں ایک مزاحیہ شاعر جب سنجیدہ شاعری کرتا ہے تو میری نظر میں بگڑ جاتا ہے. بہرحال میں زیادہ تفصیلی میں نہ جاتے ہوئے فرائڈ کے قول سے بات کرنا شروع کروں گا. سینس ان نان سینس، بیتوکی بات میں تک کی بات کرنا، یہ مزاحیہ شاعری ہے، یہ طنز المزاح. ہنسنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے. پھر ہنسنے سے زیادہ مشکل کام ہنسانا ہے، اور یہ کام ہمارے شاعر کرتے ہیں. اس لیے ان کو کیا ہے کہ بیتوکی باتیں کرنا پڑتا ہے، کچھ مزاحیہ قسم کی باتیں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ہنسنے کے لیے. زندگی کی تلخیوں، معاشرے میں جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کی تلخیوں کو کم کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے کچھ ذرا وہ مزاحیہ کی باتیں کرنی پڑتی ہے، بیتوکی باتیں کرنی پڑتی ہے. اور منشا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں، اپنی زندگی کی تلخیوں کو ذرا کم کریں، اور ہنستے ہنستے زندگی کے بے ڈھک چیز کو محسوس کر کے اسے سنوارنے کی کوشش کریں. یہ مزاحیہ شاعری کی بات ہے. میں عام طور پہ ہمارے ادب میں بہت غور خوض کرتا ہوں. میں مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک سنجیدہ شاعر اور ادیب کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنجیدہ شاعر کی شاعری عام طور پہ مفروضہ ہوتی ہے. کبھی وہ عشق نہیں کرتا لیکن عشق کی باتیں کرتا ہے. کبھی بہت ساری ایسی فرض کی بھی باتیں رہتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی تحریکیں بھی ایسی ادب کی ہیں، وہ تفصیلی بات ہے. وہ کچھ مفروضہ یعنی فرض کی بھی باتوں پہ شاعری کرتے ہیں. لیکن میں جہاں تک دیکھا ہوں، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سنجیدہ شاعر، مزاحیہ شاعر صرف اور صرف زندگی کی سچائیوں سے اپنا رابطہ رکھتا ہے، اور صرف زندگی کی سچائیاں پیش کرتا ہے. اور جتنا زندگی کے قریب ایک مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب ہوتا ہے، میری نظر میں اتنا قریب زندگی سے سنجیدہ شاعر نہیں ہوتا. میرا منشا یہ نہیں کہ سنجیدہ شاعر زندگی کے قریب نہیں ہوتا. وہ تو ادب زندگی کا عکس ہے، ادب زندگی کی تنقید ہے، ادب زندگی سے ہی مواد لیتا ہے، اور ادب زندگی کو ہی متاثر کرتا ہے. اس کے بغیر تو ادب کا وجود کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، سنجیدہ شاعر ہو کہ مزاحیہ شاعر ہو. لیکن اس کے باوجود جبکہ مزاحیہ شاعر کو ادب سے دور سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس لیے میں وہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ تو زندگی کے بہت قریب کی باتیں کرتا ہے. بہرحال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعری یہ تفریح کی شاعری ہوتی ہے، دل بہلاوی کی شاعری ہوتی ہے، ذہنی عیاشی کی شاعری ہوتی ہے. ایسی نہیں ہے بات. اس کے اندر زندگی کی بہت سی صداقتیں ہیں. آپ یہ مجموعہ کلام، یہ خدیش کہاں سے ہوتی، اس کے کچھ مزاحیہ قطعات آپ پڑھیے تو آپ کو زندگی کی سچائیوں کے قریب لے جائیں گے. اور پھر سراج کا جو انداز ہے وہ بہت ہی صاف سیدھا ہے، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والا انداز ہے. ایسی کوئی وہ الجھی ہوئی زبان نہیں ہے، لسانی اعتبار سے بہت ہی صاف سادی زبان، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والی بات ہے. بہرحال میں وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ سراج اپنے آپ پر، اپنی ناکامیوں پر، اپنی محرومیوں پر کھل کر ہنسنا جانتے ہیں، اور دوسروں کو اپنی ہنسی میں شامل کر لینے کے فن سے بھی واقف ہیں. ویسے ہنسنا بڑا دشوار کام ہے، کیونکہ چاروں طرف قدم قدم پر رونے کے اسباب بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہنسنے سے بھی دشوار ترین کام ہنسانا ہے، جو ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے جذبات اور احساسات کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے. زندگی کے جلتے صحرا کے
बादल तलाशना पड़ता है, जहनों में झांकना और दिलों को टटोलना पड़ता है। सिराज, मुझे लगता है कि इन मरहलों से गुजरे हैं। चंद और खूबसूरत और खूबसूरत किताब उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया है। हजरत, मैं आखिर में हमारी उर्दू अदब के एक दरकशिंदा सितारे मुश्ताक यूसुफी तंज़ मिज़ाह के बहुत बड़े आदमी हैं, उनके एक कौल से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अमल मिज़ाह अपने लहू की आग में तप कर निखरने का नाम। अमल मिज़ाह अपने लहू की आग में तप कर निखरने का नाम। तो मैं सिराज साहब की खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा कि शख्स से शख्सियत और शख्सियत से शनाख्त बनाने की जो डगर है, मंजिल है, बड़ी कठिन है। अल्लाह आपको इस रास्ते में कामयाबी अता करे, आप अदब में अपना मुकाम बनाएं। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। खुदा हाफ़िज़। हमें यकीन था कि शहर शोलापुर में अदब पर और किताब पे अगर कोई बोलेंगे तो बशीर परवाज़ सर बोलेंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे। हज़रात, इसके बाद मैं खुर्शीद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। ये प्रोग्राम की रस्म इजरा और तफरीज़ इजाज़त की जो कड़ी है, और उसके बाद हमारी जो तकारीर है वो बहुत अहम तरीन तकारीर है, क्योंकि सियासी सतह पर जो उथल पुथल हुई है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है, फिर इसके अलावा मुसलमानों के लिए अक़लियती पॉलिसी बनी है, उसमें इन मैडम का और सावंत सर का जो अहम तरीन रोल है उसके ताल्लुक से भी जानना है। खुर्शीद सिद्दीकी साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम और यहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हम सब की बहुत ही मोहतरमा फौजिया खान साहिबा, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मेहमान, जिनमें खुसूसी तौर पर टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से MLC जो अभी हुए हैं, और उनके साथ दीगर हमारे अहबाब जो मोहम्मद से तशरीफ लाए हैं, शबीर शाकिर साहब, फारूक सैयद साहब, ख़वातीन हज़रात, अब इतनी दूर से मुझे बुलाया है मुंबई से, आप कहते हैं कि ज़रा मुख्तसर बात करिए। शोलापुर और उर्दू अकेडमी का बहुत गहरा रिश्ता है। इन चंद सालों के अंदर मैंने अभी अपने दोस्त वकास शेख साहब से जो मेंबर है उर्दू अकेडमी से, मैंने उनसे नाम मांगे कि जिनको शोलापुर के वो लोग के जिनको उर्दू अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर अजीज नदाफ साहब सामने मौजूद हैं, मरहूम एडवोकेट कादिरुद्दीन साहब, सिराज शोलापुरी साहब, हकीम शोलापुरी, आसिफ इकबाल, एजाज नबी कारीगर, डॉक्टर शफी चौकदार, शोएब हाशमी, बशीर परवाज साहब, सैयद इकबाल, राजा पापान, और इस साल 2013 के अंदर प्रोफेसर अब्दुल साहब को उर्दू अकेडमी का अवार्ड दिया, जो चंद रोज में उनको दिया जाएगा। मेरे लिए ये इंतहाई फख्र की बात है कि मैं तालीम से जुड़े हुए लोगों के साथ आज यहाँ मौजूद। मोहतरमा फौजिया खान साहिबा ने अपने कैरियर की इब्तिदा दर्स व तदरीस से की। सावंत साहब खुद तालीमी कामों से साथ जुड़े रहे। मालदार साहब वाइस चांसलर हैं, और आपको जान के शायद भारत होगी नहीं मालूम है तो बता दो, मैं खुद ही 33 साल तक दर्स व तदरीस से वापस आ रहा हूँ। इस मुनासबत से अपने उन तमाम साथियों के साथ आज मैं मौजूद हूँ, जिसके लिए बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है कि हम आज तस्करा कर रहे हैं तालीम के ताल्लुक से, हम एजाज़ दे रहे हैं उन लोगों को, उनकी खिदमत का इतराफ़ कर रहे हैं कि जिन्होंने तालीम के मैदान में कुछ काम किया, समाजी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। यकीनन मोहतरमा फौजिया खान साहिबा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनका पब्लिकली इस बात का इतराफ़ किया जाए कि उन्होंने अक़लियतों की तालीम की खातिर बहुत काम किए।
कैरियर तो उन्होंने अपने तालीम से शुरू किया था, लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं उस मुनासबत से उन्होंने तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। आज अगर उनको एहसास दिया जाता है, उनकी समाजी और तालीमी खिदमत का एहतराम किया जाता है, तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ बात है। सावंत साहब के मुताबिक अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने नॉन परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस पे जो स्कूल चलते थे उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और मैं खुद चूंकि तदरीस से वाबस्ता था, मैं जानता हूँ कि MLC टीचर कंस्टिट्यूट इलेक्शन जीतना कितना मुश्किल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों का हमदर्द होता है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है, टीचर्स तक दरमियान तक जाने की कोशिश करता है, वही शख्स कामयाब हो पाता है। इस मुनासबत से हमारे सावंत साहब इस बात के लिए मुस्तहिक है कि उनकी खिदमत का एहतराम किया जाए और उनका साथ दिया जाए, इसलिए कि अभी उनकी एक नई इब्तिदा है और नई शुरुआत है। इनका साथ आप देंगे तो जाहिर बात है कि शोलापुर के जितने तालीमी मसाइल आपके हो सकते हैं उनको हल करने में आसानी और आपके लिए बहुत आसानी हो सकेगी। सिराज शोलापुरी साहब मेरे लिए नए नहीं हैं। इनके पहली किताब को उर्दू अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा था, उनकी खिदमत का एहतराम किया था। और ये दूसरी किताब के जिसका इजरा होने जा रहा है, ये मुसवदा अभी 1 साल पहले उर्दू अकेडमी में जमा किया गया था। उसको उर्दू अकेडमी ने जो पब्लिकेशन ग्रांट्स से नवाजा है, जिसके तहत आज जो किताब शाये होने के बाद आज वो रस्मी इजरा पे आई है, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सआदतमंद समझता हूँ कि ऐसी किताब की इजरा की मौका यहाँ मौजूद। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ई-लर्निंग का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, एक कसीर तादाद में असातिज़ा मौजूद थे। तो हमारी कोशिश ये रही कि उर्दू अकेडमी के जरिए से उर्दू ज़ुबान को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। जाहिर ये बात है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर उर्दू ज़ुबान को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। रह गई ये बात, बशीर परवार साहब ने कभी कहा कि शायरी और अदब से लोगों को दिलचस्पी नहीं रही है। एक मैं छोटा सा वाक़या आपको बयान करता चलूं कि उर्दू शायरी अपना क्या मुकाम रखती है। अभी 2 साल से उर्दू अकेडमी ने गेट ऑफ इंडिया के ऊपर 26 जनवरी को मुशायरे का इनेकाद शुरू किया है। गुज़िश्ता साल जब मुशायरे का प्रोग्राम था तो उस इलाके के गुलाबा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का प्रोग्राम शुरू हो चुका था और 15 या 20 मिनट के बाद आगे बोलता है कि साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं कोने में जाके बैठ जाऊँ। मैंने कहा भाई क्या बात हुआ? तो मैंने सारा इंतजाम कर दिया। मैंने कहा फिर मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू शायरी 1 घंटा में सुनूं, इसलिए कि मैं 26 जनवरी की वजह से सुबह से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इत्मीनान के साथ उर्दू शायरी को सुनूं। और आपको सुनकर हैरत होगी कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं उस शुक्रिया के लिए उसके पास पहुँचा तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में था, बहुत ज़्यादा दबाव में था, लेकिन ये 1 घंटा जो मैंने गुजारा है उसकी वजह से बहुत कम टेंशन हो गया है मेरा, बहुत ज़्यादा मैं आपको हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो ये है उर्दू शायरी जिसके असरात हमको नजर आते हैं। हालांकि वो बज़ाहिर उर्दू का जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला नहीं था, लेकिन उर्दू शायरी से रग़बत करता था, उर्दू शायरी को पसंद करता था। इन चंद इब्तदाई कलमात के साथ मैं सिर्फ उन तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो उर्दू के ताल्लुक से काम कर रहे हैं, जाहिर बात है में असातिज़ा की एक बड़ी तादाद है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि 2009 से मोहतरमा फौजिया खान साहिबा हमारी वाइस चेयरपर्सन भी है उर्दू अकेडमी की। 2009 से जो पहले अवार्ड असातिज़ा को दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन वो शुरू किए गए हैं। राजा बागबान साहब यहाँ मौजूद हैं, पिछले साल उनको टीचर अवार्ड दिया गया है। आप हजरात भी उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। दीगर और जो उर्दू अकेडमी की स्कीमें हैं उन स्कीमों को पूरी तरह से नाफिज करने के लिए, उनको अमल में लाने के लिए हमको NGOs सरकार होते हैं, ये इदारा हमारे साथ कोऑपरेशन करेगा तो शोलापुर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम मुनक़िद कर सकेंगे। आपको याद होगा कि शोलापुर के अंदर हर साल ड्रामा फेस्टिवल किया जाता है। मेरी और हमारे दोस्तों की ये ख्वाहिश है इस साल, आने वाले साल के अंदर, आने वाले बजट के अंदर
फेस्टिवल के साथ साथ ड्रामा कंपटीशन भी हो। उर्दू स्कूलों के तलबा उसमें हिस्सा लें, कॉलेजेस के तलबा उसमें हिस्सा लें, ताकि नई नस्ल जो है वो ड्रामे से उर्दू ज़बान से उर्दू ड्रामे से मुतारिफ हो सके। इन चंद कलमात के साथ मैं उन तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके एजाज़ में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। शुक्रिया। हकीकतों को जानते हैं, वो किसी के लिए आपने बड़ा काम किया है और आपकी बहुत बेहतरीन तकदीर रही। बात किया है, बात होती है, बात इलाज होती है। सुनने वाला कलीम हो जाए, कहने वाला कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। बात कहते हैं रब्बे इन्हीं को, बात उम्मुल किताब होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। यकीनन उर्दू शायरी में वो असर है, वो कशिश है, और यकीनन आपको एक कशिश जो है प्रोग्राम के इख्तिताम तक बांधे रखेगी, क्योंकि हमने सिराज साहब को सदर जलसा की तकरीर से पहले पेश करना तय किया है। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ फारूक सैयद साहब को आए, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। फारूक सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। तेरी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, तेरी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया। मैं मेज़बान था, मुझे मेहमान कर दिया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम मेरे साथियों को जिन्होंने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। एजाज साहब ने बताया कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं पौधे मैडम, वाकई वो आफ्ताब व महताब हैं जो किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। यहाँ सामने बैठना स्टेज और सामने मैं समझता हूँ कि तराजू के दो पल्ले होते हैं। तराजू का ये पल्ला जो सामने है वो जितना नीचे जाएगा, स्टेज वाला पल्ला उतना ही ऊपर होगा। तो आज ये पल्ला इसलिए ऊपर है कि यहाँ पर बैठे हुए सामईन बहुत ज़्यादा वजनदार हैं, बहुत ज़्यादा इज्जतदार हैं, बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, मुस्तनद हैं, और बहुत ही कई अहम शख्सियत मिलकर यह आफ्ताब महताब का कहकशां सजा हुआ है। हाज़रीन, सिराज सुलापुरी की किताब के इजरा के लिए ख़ुसूसी तौर पर यहाँ आने का इत्तेफाक इसलिए भी हुआ कि सिराज ने ये किताब मेरे नाम मंसूब की है। इसका लायक, इसका हकदार वाकई मैं नहीं हूँ। जब मैंने देखा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि सिराज एक ऐसा खामोश तबीयत शायर है जो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। और हाज़रीन, खामोशी क्या है? खामोशी ऐसी ज़बान है जिसे हर कोई अपने तौर पर बोलता है। खामोशी चीखती और चिल्लाती है, दहाड़ती और चिंगाड़ती है, और जब महबूब खामोश हो जाती है तो उसे नाराज़गी का नाम दिया जाता है। महबूबा खामोश हो जाती है तो बुज़दिली कहलाती है। वालिदैन खामोश हो जाते हैं तो माजूरी समझी जाती है। औलाद खामोश रहती है तो सआदतमंदी कहलाती है। इंसान खामोश हो जाता है तो बेबसी कहलाती है। इंसानियत खामोश हो जाती है तो बेहिसी कहलाती है। हुक्मरान खामोश हो रहते हैं तो हिकमत अमली कहलाती है, और हुकूमत खामोश हो जाती है तो बहुत बड़ी साजिश कहलाती है। अदीब खामोश हो जाता है तो दर्दमंदी कहलाती है, और शायर जब खामोश हो जाता है तो फिक्रमंदी कहलाती है। और सिराज की शायरी फिक्रमंदी की शायरी है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायर लिख रहा है, कारी नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। और जिस ज़बान में पढ़ने वालों की तादाद कम होती जाती है तो यकीन जानिए, और जहाँ पढ़ने वालों की तादाद कम हो जाती है और जूतों की फिक्र ज़्यादा होती है तो ज़बान के मानने वालों को किताबों की नहीं, जूतों की ज़रूरत होती है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ ऐसे लोगों से जो यहाँ से उठकर शहर बदरी के लिए मजबूर होते हैं। उसमें एक नाम
सिराज सोलापुरी का। जिस दर्दमंदी से, जिस कर्म से आदमी अपनी जमीन को छोड़ता है, उसका दर्द वही महसूस कर सकता है जो यहाँ से निकल कर दूसरे शहर में जाता है। वो न तो उसे वहाँ कबूल किया जाता है, न तो यहाँ पर उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ दर्दमंद हज़रात बैठे हैं, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले बैठे हैं, असातिज़ाए कराम बैठे हैं। ये किताब जो आपके सामने भी जिसका इजरा होना है, फौजिया मैडम का बहुत हम लोगों का एहसानमंद होना चाहिए कि तहसीन भाई हमारे बहुत करीबी हैं। परभनी जब भी जाते हैं तो तहसीन भाई, आपको याद होगा कासिम भाई के साथ मैं भी होता हूँ और आप ही के मतलब नमक वाली करते रहते हैं। आज तहसीन भाई भी फौजिया मैडम के साथ आई हैं। घर में जो सामना गुजरा है, यकीन जानिए जिस दर्दमंदी के साथ, जिस कैफियत के साथ ये लोग सोलापुर आए हैं, सिराज सोलापुरी की किताब के इजरा के लिए आए हैं और आपसे तालीम के नाम पर खिताब करने के लिए आए, आपको इनका एहसानमंद होना चाहिए। हाज़रीन, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले, बड़ी बड़ी मिलें चलाने वाले, बड़ी बड़ी दुकान चलाने वाले, बड़े बड़े दुकान सजा